Hello students, in this video lecture I am going to discuss about occurrence of metals. Chapter 3 Metals and Non-Metals, class 10th Science. So if we talk about occurrence of metals, that means we have already studied in class 8, if you remember, in this chapter metals and non-metals wala chapter mein we discussed about the things related to the occurrence of metals, where the particular element is found in Earth's crust, what is their abundance. A little bit introduction we had there, but now we are going to discuss about extraction of metals. Okay, as you can see, occurrence of metal is 3.4 वाला that heading है ना. So 3.4 occurrence of metals in the text book है ना. So अगर मैं occurrence of metals के बारे में बात करती हूँ, so occurrence of metals में basically we are going to discuss two things, that is enrichment of ores, enrichment of ores, and the second thing is the extraction of metals. Now ये दोनों टॉपिक्स इसकी मेन है. Now this is not, these two are not defining the occurrence. बेसिकली अगर हम बात करें अकरेंस की, तो ये अकरेंस नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि कोई अगर मेटल मुझे मिलता है तो मेटल को मैं कैसे निकालूंगी. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल, रेदर मूविंग टू द एनरिचमेंट और एक्सट्रैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड मिनरल्स. ठीक है, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनरल्स, और रेदर आई डू से दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स. बेसिक क्वेश्चन. Okay, so देखो, this is a topic in this chapter, but you know there is a huge field behind this which is referred as metallurgy. Okay, ये metallurgy का you know you are studying a very short view, you are seeing very short view of this metallurgy, that is occurrence of metal. and that too occurrence नहीं देखना हमें कि अगर कहीं मेटल मिलता है तो अब उसे निकालना कैसे है ना. तो जैसे मेटल्स जो है वो ज्यादातर अर्थ क्रस्ट में मिलता है. ठीक है, मेटल्स के अलावा यू नो वी कैन, इफ यू वांट टू डिफाइन मिनरल्स, ठीक है, इफ यू वांट टू डिफाइन मिनरल्स, तो मैं मिनरल्स को क्या कहूंगी कि दे आर आइदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. मिनरल्स या तो एलिमेंट्स होंगे या तो कंपाउंड्स होंगे, विच आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, जो हमें अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे. लेकिन कैसे मिलेंगे? नेचुरली, है ना. ऑब्वियसली दे आर फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट. आइदर दे कैन बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. ओके, बट व्हेन आई से ores are nothing but minerals. Ores are nothing but minerals. But these are such minerals which are having high percentage of particular metal. है ना, high percentage of particular metal. तो अगर मैं ओर की बात करती हूँ तो ओर भी एक मिनरल ही है, लेकिन उस पर्टिकुलर मिनरल में एक पर्टिकुलर मेटल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जो भी हमारा जो हम मेटल चाहते हैं उसका जो परसेंटेज है, अगर वो ज्यादा होता है उस पर्टिकुलर मिनरल में. और एक कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन है. सेकेंड कंडीशन क्या, कि दैट मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, दैट मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड profitably, can be extracted profitably. तो आप उसे एक्सट्रैक्ट कर सको प्रॉफिटेबली. दूसरा, वो जो मेटल जिस मिनरल में से तुम निकाल रहे हो उसका परसेंटेज हाई हो, तभी ही उस पर्टिकुलर मिनरल को हम ओर कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक वन स्टोन सपोज एंड अनदर स्टोन, both the stone, or instead of rather saying stone, let us consider a rock.
these both rock are identical, and these both rocks, if you remember, rocks are made up of nothing but minerals. रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। तो अब अगर हम इसमें बात करें, रॉक्स की बात करें, तो रॉक्स में क्या होता है कि ये दोनों समझो रॉक जो है दे आर आइडेंटिकल। नाउ आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ व्हाट, दैट इन टर्म्स ऑफ वी कैन से टेक्सचर, in terms of containing minerals, they are having identical minerals, but not the composition, है ना। समझने के लिए कि अगर मैं मिनरल्स की बात करती हूँ, दोनों रॉक्स में दे आर आइडेंटिकल, दे आर हैविंग सेम टेक्सचर, दे आर हैविंग सेम काइंड ऑफ मिनरल्स, बट the composition of minerals is not same. Let me say that this contains, okay, suppose you are these rocks are containing gold. Suppose these rocks are containing gold and you want to extract the gold. Extract gold means, see, the metals are not directly found in the earth's crust. Earth's crust में तुमको as it is metals नहीं मिलेंगे. Metals are found along with some impurities, ठीक है, कुछ सैंड, सॉइल वगैरह सब होगा साथ में, तो उसको हमें सेपरेट करना है और फिर उसको अच्छे से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, उस पर्टिकुलर ओर में से निकालना है। निकालने का जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, अ नंबर ऑफ स्टेप्स डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, कंफ्यूजन ना करते हुए यहाँ ध्यान दो कि अगर मुझे गोल्ड को इस रॉक में से निकालना है, इस रॉक में से निकालना है, आई वुड फॉलो द सेम प्रोसीजर, बट जब मैं ये रॉक में से गोल्ड को निकालती हूँ, ठीक है, तो जो प्रोसीजर का एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एक्सपेंडिचर फॉर एक्सट्रैक्शन, मुझे जो गोल्ड निकालना है उसके लिए जो मैं प्रोसीजर करूंगी, ठीक है, अप्लाई करूंगी, स्टेप्स फॉलो करूंगी, उसका जो एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंस है, वुड बी अराउंड ₹10,000, वुड बी अराउंड ₹10,000 सपोज। तो दोनों रॉक्स क्योंकि आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल साइज के हैं, टेक्सचर के हैं, ठीक है, मिनरल्स जो है, जिसमें भी जो हमारा इंटरेस्ट है कोई पर्टिकुलर मेटल को निकालना, हमारा इंटरेस्ट ऑफ मेटल कौन है, गोल्ड। तो ये जो गोल्ड है, अगर हमें इसे निकालना है, तो लेट्स सपोज कि इन दोनों को जो भी मुझे तोड़ना वगैरह करना है, स्टेप फॉलो करना है, उसका रुपीस कितना है, 10,000। नाउ सपोज इफ इसको मैंने प्रोसीजर फॉलो करके गोल्ड निकाला, इसका प्रोसीजर फॉलो करके एक्सट्रैक्ट किया, किसको, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया। अब मुझे पता चला कि जब मैंने 10,000 रुपीज खर्च किए ताकि मैं गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करूं और मुझे गोल्ड सिर्फ मिला 5,000 का, और यहाँ पे मैंने 10,000 रुपीज ही स्पेंड किए टू गेट अ गोल्ड वर्थ रुपीज लेट्स सपोज 15 और लेट्स सपोज 20,000। सो दोनों में मैंने सेम प्रोसीजर फॉलो किया, दोनों सेम ही साइज के थे, पर मुझे प्रॉफिट किस में हुआ, प्रॉफिट मुझे इसमें हुआ, है ना। कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हुआ, बट क्या मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, नहीं, मैंने 10,000 खर्च करके 5,000 की चीज निकाली। दैट मीन्स व्हाट, कि दिस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, दिस इज लॉस एंड दिस इज नॉट प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन, है ना। ये एक्सट्रैक्शन जो है वो मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहा है, मेरा प्रॉफिट किसमें है, इसमें है। सो दिस इज हैविंग, यू नो, दिस इज समथिंग नोन एज प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्शन। ठीक है, मान लो कि तुम्हारे उस पर्टिकुलर जो भी मिनरल तुम देखते हो उसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल तो है, लेकिन जब तुम एक्सट्रैक्ट करने जाते हो तो तुम्हारा जो खर्चा है और जो तुम्हें मिलता है वो तुम्हें प्रॉफिट देना चाहिए, तभी तुम उसे क्या बोलोगे, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टिंग। ओके, अदरवाइज अगर सिर्फ एक कंडीशन मीट हो पाती है, दूसरी नहीं हो पाती, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर मिनरल इज नॉट ओर। समझो ध्यान से, दिस इज द टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच मेक्स अ पर्टिकुलर मिनरल सेड टू बी ओर, है ना। और तुम मिनरल को तब कहोगे जब
उसमें परसेंटेज ऑफ मेटल, जो तुम्हारा इंटरेस्ट ऑफ मेटल है, ठीक है, तो वो जो तुम्हारा इंटरेस्टिंग मेटल है, जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई पर्टिकुलर मेटल है, उसका परसेंटेज हाई होना चाहिए, साथ ही साथ तुम उसे प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सको। तो ये तो बात हो गया ओर और मिनरल्स की। नेक्स्ट जो हमें बात करना है वो बात करना है कि एक्सट्रैक्शन और एनरिचमेंट, जैसा कि मैंने कहा था। तो मैंने जैसा अभी बताया कि ओर्स जो है, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे तुम लोगों ने क्लास 7th में बेसिस एंड अल्कलीज के बारे में पढ़ा होगा, और अभी भी क्लास 10th में इसका रिवीजन लिया होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में। व्हेन आई डिस्कस अबाउट बेसिस एंड अल्कलीज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन these two, and we say that all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. अब ये तुम्हें पता है क्यों? ये तुम्हें पता है क्यों? Why? Because हमें पता है कि alkalis are the bases, वो भी bases है, which are water soluble, तो अल्कलीज ऐसे बेसिस है जो पानी में सॉल्यूबल है। तो सारे ऐसे बेसिस जो पानी में सॉल्यूबल है उनको मैं अल्कलीज कहूंगी। मीन्स व्हाट, कि सारे अल्कलीज बेसिस हो गए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि सारे बेसिस जो है दे आर वाटर सॉल्यूबल। सो वी कैन नॉट से ऑल बेसिस एज अल्कलीज, बट वी कैन से दैट ऑल अल्कलीज आर बेसिस। सिमिलरली यहाँ पे भी तुम ऐसा कह सकते हो कि all minerals are not ores, but all ores are minerals. ओके, सो यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं कि ये जो ओर्स हैं, ओर्स ही तो क्या है, मिनरल्स हैं, पर अगर ये मिनरल्स के पास हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल हो और अगर तुम उसे एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो प्रॉफिटेबली विदाउट एनी लॉस, देन यू कैन से दैट दैट पर्टिकुलर मिनरल इज ओर। तो ओर तो मिनरल ही है, पर सारे मिनरल्स ओर होंगे क्या? नहीं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर्स। ओके, नाउ इफ यू मूव फर्दर, let us discuss about something known as enrichment of ores. तो जब मैं enrichment of ores की बात करती हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि जब भी ores हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं तो हमें ores में क्या सिर्फ मेटल्स ही मिलेंगे? नहीं, मेटल्स के साथ कुछ इम्प्योरिटीज होगी, मेटल्स के साथ कुछ इम्प्योरिटीज होगी, इम्प्योरिटीज एज इफ सॉइल, sand, other metals, etc. तो ये जो इम्प्योरिटीज मिल रही है हमें मेटल्स के साथ, ये जो इम्प्योरिटीज मिल रही है हमें मेटल्स के साथ, these impurities are referred as gangue. Okay, these impurities are referred as gangue. Now, when I say कि हमें कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, सो देर आर सम प्रोसेसेस इन्वॉल्व फॉर सेपरेशन ऑफ, सेपरेशन क्या करना है हमें? सेपरेशन ऑफ ओर्स फ्रॉम इम्प्योरिटीज। तो ये जो इम्प्योरिटीज हैं अगर हमें ओर्स से सेपरेट करनी है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनरिचमेंट, और एल्स हम इसे ये भी कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो अगर ओर्स में से हमें इम्प्योरिटीज निकालनी है, ठीक है, जब हम अर्थ क्रस्ट में से ओर को निकाल रहे हैं तो ओर्स के आसपास भी क्या होगा? सैंड, सॉइल और दूसरे मेटल्स के ओर्स, वो सब इम्प्योरिटी है। तो वो इम्प्योरिटीज को ओर से सेपरेट करना, दैट प्रोसेस इन्वॉल्व्स व्हाट? एनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। उसे हम क्या बोलते हैं कि हम ओर्स का कंसंट्रेशन कर रहे हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट
एनरिचमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बट यू नो राइट नाउ यू हैव टू ओनली बी अवेयर अबाउट व्हाट इज द टर्म गैंग, है ना, why we are separating ores from impurities। ऑब्वियसली अगर impurities सेपरेट कर दोगे तो मेटल्स को ओर्स में से निकालना आसानी हो जाएगा, है ना। देखो सी द डिफरेंस, जब अर्थ क्रस्ट है तो अर्थ क्रस्ट में तुम्हें क्या मिलता है, ओर मिलता है, और क्या मिलता है, इम्प्योरिटी मिलता है, ठीक है। तो ये इम्प्योरिटी को तो तुम ओर से कैसे सेपरेट कर रहे हो, बाय दीज प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स यानी जो तुमने पर्टिकुलर वो सॉइल में से रॉक्स निकाले होंगे उसमें से जो तुम्हें ज्यादा, देखो कंसंट्रेशन और डाइल्यूट का मतलब पता है ना कि अमाउंट ऑफ ओर्स तुम इंक्रीज करो, कैसे, तो इम्प्योरिटी को निकाल के, दैट इज एनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। नेक्स्ट स्टेप जब तुम जाओगे तब तुम क्या करोगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स, ठीक है। तो हम क्या है कि डायरेक्टली हम एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स में जंप नहीं करते, हम डायरेक्टली एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स पे जंप नहीं करते, पहले एनरिचमेंट करते हैं ताकि एक्सट्रैक्शन में यू नो वी फील इजी टू सेपरेट मेटल, प्योर मेटल फ्रॉम दैट ओर, ठीक है। तो जैसे सॉइल सैंड वगैरह है उसे पहले ओर से सेपरेट करना है, विच इज इन एनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, एंड देन उसके बाद क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स, कि उसमें हमें प्योर मेटल को ओर से सेपरेट करना है। नाउ कैसे अब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, देखो थोड़ा बहुत एनरिचमेंट का तुम्हें क्लियर हुआ होगा कि अगर मुझे गैंग को, अगर मुझे इम्प्योरिटीज को ओर्स से सेपरेट करना है, दैट प्रोसेस इटसेल्फ इज नोन एज एनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। बट अगर मैं बात करती हूँ किसकी, एक्सट्रैक्शन की, तो जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होता है, ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स is on the basis of reactivity of metals, is on the basis of reactivity of metals। और अगर तुम्हें याद हो, you have already studied reactivity series of metals, उसी के बेसिस पे we are going to do extraction of different metals। Now see, first of all, understanding the extraction on the basis of reactivity of metals, सबसे पहले we should know कि what metals या how, which metals and how the metals are arranged in reactivity series। Okay, so you know there is one mnemonic to remember this is, please stop calling me a zebra, instead learn how copper, mercury saves gold। So this is a mnemonic to remember the metals of, you know, according to their reactivity। Like this P stands for potassium, S stands for sodium, Ca calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold। So this is the reactivity series: potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver and gold। Now see, here you can see how the reactivity is. The reactivity of metal decreases down the reactivity series। See, potassium is highly reactive, potassium is highly reactive, and this reactivity decreases as we move down in the reactivity series of metals। Okay, so this gold is least reactive। We can also add here platinum, we can also add here platinum। Okay,
So if you observe carefully, this extraction of metal is on the basis of reactivity of metals. So metals are, extraction of metals with high reactivity metals with low reactivity and metals with medium or middle reactivity, okay, which are present in, here we can say medium. So these are the metals which are having high reactivity, and therefore potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminium, these are the metals with high reactivity. Okay, potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminium are the metals with high reactivity. So in this sequence you have to remember these are the metals with high reactivity. Since they are very highly reactive, so they are not found in free state, है ना, they are always found in combined state. Okay, combined मतलब किसी न किसी के साथ react करके they would be forming compounds rather than existing in Earth's crust as element or in a free state. ठीक है, तो ये कैसे exist करेंगे, ये जो है जो highly reactive हैं, ऐसे metals exist in combined form. Okay, the metals with low reactivity are platinum, gold, silver, mercury and copper. तो these are low reactivity है. low reactivity मतलब reaching to the Buddha state, है ना भाई, उनको किसी के साथ कुछ है ही नहीं, किसी के साथ संबंध नहीं बनाना है भाई, हम अकेले रहेंगे, हमें उसमें ही मजा आ रहा है. तो दे आर एग्जिस्टिंग इन अ फ्री स्टेट. ये कैसे हैं, ये सब मोह माया से पड़े हैं. हालांकि सिल्वर गोल्ड इज इटसेल्फ अ मोह, पर ठीक है, बट दिस इज सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर and mercury, these exist, ठीक है, normally they exist as free state, ठीक है, exist in free state rather, and exist in free state, or you can also refer it as native form, exist in their native form, मतलब किसी के साथ कंबाइन होने की इनकी टेंडेंसी नहीं है. पर एक्सेप्शंस क्या है कि कॉपर एंड सिल्वर कभी कभी, है ना, कभी कभी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना, ये बोलते हैं हम बुद्धा स्टेट पे जा रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो कंपैरेटिवली कॉपर और सिल्वर की रिएक्टिविटी गोल्ड और प्लेटिनम से तो ज्यादा है ना, मतलब ये पूरी तरह से बुद्धा स्टेट पे अभी पहुंचे नहीं है, बस पहुंचने की ट्राई कर ही रहे थे कि डिस्ट्रैक्ट हो गए. क्या डिस्ट्रैक्शन आया कि भाई वो कंबाइन होने लगे. किससे कंबाइन होने लगे, तो वो ऑक्सीजन से हो सकते हैं या सल्फर से होते हैं. तो जब कॉपर और सिल्वर ऑक्सीजन या सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे, दे वुड बी एग्जिस्टिंग, देयर ओर वुड बी एग्जिस्टिंग आइदर एज ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स. तो ज्यादातर जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनकी टेंडेंसी क्या है कि भाई वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होंगे, दे एग्जिस्ट इन नेटिव स्टेट, है ना. पर फिर भी कुछ एलिमेंट्स या कुछ मेटल्स जैसे कि कॉपर और सिल्वर हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ आइदर ऑक्सीजन और सल्फर एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट मेटल्स विथ मीडियम रिएक्टिविटी, तो कौन बचे भाई, यहाँ से यहाँ तक तो हाईली रिएक्टिव है, यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं. तो ये जो मेटल्स हैं, तुम देखो कॉपर जो है, कॉपर को मीडियम रिएक्टिविटी में भी डाल रहे हैं, ठीक है. तो जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर,
these are the metals with medium reactivity. अब ये कंबाइंड स्टेट में भी हो सकते हैं, तो कंबाइंड स्टेट में वो ज्यादातर ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड्स के फॉर्म में होते हैं, या कार्बोनेट्स के फॉर्म में होते हैं। क्या? इनकी ओर्स, इन मेटल्स की जो ओर्स होती है वो या तो ऑक्साइड के फॉर्म में होगी, या सल्फाइड के फॉर्म में, या कार्बोनेट के फॉर्म में। तो दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट, क्योंकि उनकी भी रिएक्टिविटी तो है, किसी ना किसी के साथ तो रिएक्ट करेंगे। टेक्स्ट बुक में एक लाइन लिखा है कि ऐसा देखा गया है कि जो मेटल्स हैं, ज्यादातर मेटल्स की जो ओर्स होती है वो ऑक्साइड्स होती है। ठीक है, मोस्टली जो ओर्स होती है वो क्या होती है? ऑक्साइड्स होती है। सब पूछा क्यों कि भाई ज्यादातर ऑक्साइड्स क्यों किया, भाई ऐसा भेदभाव क्यों? सल्फाइड और कार्बोनेट चिल्ला रहे हैं, बोले भाई ऐसा भेदभाव क्यों कि ज्यादातर मेटल्स है ना ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बना देते हैं, हम क्या करें? मतलब ऐसा नहीं है, ओर्स सल्फाइड्स वाली भी होती है, कार्बोनेट्स वाली भी होती है, पर ऑक्साइड्स वाली ज्यादा देखने को मिलती है। दो रीजन याद रखना कि मेटल्स जो है वो ज्यादातर ऑक्साइड्स के फॉर्म में क्यों मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा है इन अर्थ्स क्रस्ट। एक रीजन तो ये है, एक रीजन क्या है कि ऑक्सीजन इज वेरी अबंडेंट इन अर्थ्स क्रस्ट। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि ऑक्सीजन इज अ रिएक्टिव एलिमेंट। भाई जितना ज्यादा मेटल रिएक्टिव है रिएक्ट करने के लिए, ऑक्सीजन भी उतना रिएक्टिव है। अगर दो रिएक्टिव मिल गए तो फटाक से चिपक के क्या बना देंगे? कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है कि व्हेन आई टॉक अबाउट ऑक्साइड्स, तो ऑक्साइड्स में क्या है कि ऑक्सीजन इज अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, एक ये। दूसरा रीजन क्या कि ऑक्सीजन इज अ रिएक्टिव एलिमेंट। दीज आर द टू रीजंस जिसके वजह से ज्यादातर जो हमें ओर्स मिलती है वो हमें ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलती है, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में भी मिलती है, पर ज्यादातर किसके फॉर्म में मिलती है? ऑक्साइड्स के फॉर्म में। रीजन क्या है? दो रीजन है कि ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट, या मोस्ट नहीं पर हम कह सकते हैं अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। मोस्ट तो नहीं, पर एक फैक्टर ये भी है कि वो अबंडेंट है, अच्छा खासा अर्थ क्रस्ट में है। दूसरा क्या कि वो रिएक्टिव है, दूसरा क्या कि वो रिएक्टिव है, इसके लिए ज्यादातर ओर्स हमें ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलेगी। सो दिस वाज ओनली द समरी रिगार्डिंग अकरेंस। बेसिकली हमने अकरेंस की तो बात की नहीं, हमने बात की एनरिचमेंट क्या है। उससे पहले हमने शुरू किया कि भाई ओर्स और मिनरल्स क्या है, उन दोनों का अंतर समझा, डिफरेंस समझा, और उसके बाद वी शिफ्टेड टू एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। मतलब क्या कि भाई ओर्स को अगर हमें सेपरेट करना है फ्रॉम इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज का टर्म क्या था? गैंग। इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं? गैंग। लेकिन गैंग का स्पेलिंग देख लेना, ठीक है? पता चला कि वो गुंडे वाला गैंग लिख के है तो नहीं चलेगा, है ना? सो दिस इज द गैंग, दिस इज द इम्प्योरिटीज विच आर प्रेजेंट इन, या विथ, नॉट इन बट हाँ ऑब्वियसली इन विथ ओर्स। अब जब मैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स कर रही हूँ, मतलब क्या कि मैं इम्प्योरिटीज को ओर्स से सेपरेट कर रही हूँ, कौन से बेसिस पे प्रोसेसेस को मैं यूज करूंगी? तो उनके फिजिकल जो मैं प्रोसेसेस यूज करूंगी ना, वो या तो फिजिकल या तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैं इनको सेपरेट करूंगी। ठीक है, गैंग की और ओर्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई वुड बी सेपरेटिंग दीज टू मतलब ओर्स और गैंग। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। बट इसके बाद देखो, अगर तुम डायरेक्टली ओर को निकाल के अर्थ क्रस्ट में उसका एक्सट्रैक्शन करने लगोगे तो इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन थोड़ा सा अगर तुम साफ कर सकते हो ओर को, इम्प्योरिटीज जो भी सॉइल सैंड है वो सब निकाल के और फिर एक्सट्रैक्ट करो तो अलग ही मजा है। कहने का मतलब ये है कि एक्सट्रैक्शन से पहले वी हैव टू डू एनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। फिर हम क्या कर रहे हैं? देन वी आर मूविंग टू एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स। एक्सट्रैक्शन किसके बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। अगर रिएक्टिविटी सीरीज ही याद नहीं रहेगी तो कैसे पता चलेगा कि वो मेटल विथ हाई रिएक्टिविटी है कि मेटल विथ मीडियम की लो रिएक्टिविटी, है ना?
तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, कौन से मेटल कौन सी रिएक्टिविटी शो करते हैं, और उस बेसिस पे तुम्हें ये बता पाओगे कि भाई वो नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं कि वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि ज्यादातर ओर्स ऑक्साइड्स के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करती है। दो रीजन है कि भाई ऑक्सीजन जो है वो अबंडेंट है किसमें, अर्थ क्रस्ट में। दूसरा रीजन क्या है कि ऑक्सीजन इज एन रिएक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में वी वुड बी कंटिन्यूइंग विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी, कि अगर मुझे पता चल गया भाई ये मेटल्स है, मैंने उसका एनरिचमेंट कर लिया, अब जब मैं वो ओर लेके आई मुझे उसको प्योर करना है, मुझे ओर में से प्योर मेटल को निकालना है, वही तुम्हारा एक्सट्रैक्शन हुआ। तो मुझे हाई रिएक्टिव मेटल का ओर मिला है, अब उसमें से मुझे ये जो पर्टिकुलर मान लो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, उसको मुझे सेपरेट करना है, मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो मैं कैसे करूंगी, कौन से स्टेप्स फॉलो करूंगी, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए लो रिएक्टिविटी के लिए और मीडियम रिएक्टिविटी के लिए, तो ऐसे मेटल्स के लिए कैसे एक्सट्रैक्शंस करना है, दैट वी वुड बी सीइंग इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।